Hello students, how are you? Once again, welcome back in my class 12th physics. Students, as you know, in my previous lecture, I have discussed about the radioactivity, the property of the radioactive substances. Today, we will move ahead. The first topic of the day is Soddy-Fajan'S displacement law. Students, you know very well that there is continuous emission of alpha, beta and gamma particles from the radioactive substance. But nobody knows that which particle will come first. Okay, you all know that the alpha and gamma can come together. Beta and gamma can come together, but alpha and beta cannot come together. Or you can say alpha, beta and gamma, all three particles cannot come together from a radioactive substance. Yes, when alpha particle comes out, beta particle comes out, gamma particles comes out, then what type of changes takes place? You know, we can write radioactive substance, any substance X, Z, A. What is this? This is your atomic number and this is your mass number. A is what? Mass number and Z is atomic number. What is the alpha particle? Alpha particle is what? He24. What is beta particle? Is beta -1. Right? Alpha particle is the helium nucleus, while beta particle is denoted by this, and gamma particle is as such. Right? Students, experimentally it was observed that when alpha particle comes out, then what will happen? Beta particle will come out, then what will happen? And when gamma particle comes out, then what type of change will take place? This rule, the conclusion on the emission of the alpha, beta and gamma particle, which changes the mass number and atomic number. For this, which rule was given is Soddy-Fajan'S displacement law. Why it is displacement? When from any substance alpha particle comes out, there is change in mass number and atomic number, and in periodic table, depending on the atomic number, that substance displaces in the periodic table after the emission of the alpha particle, after the emission of the beta particle, and that's why it is Soddy-Fajan'S displacement law. How it changes? First, I am going to explain. You listen. For example, this is your radioactive substance ZA. Mass number, atomic number. When alpha particle क्या है? He24. So when alpha particle is coming out, A, mass number, decreases by 4. So if this becomes the new substance Y, then it is here A -4, while the atomic number becomes Z -2. Right? It means on emission of the alpha particle, mass number decreases by 4 while the atomic number decreases by 2. Right? For every alpha particle. Now, there is emission of beta particle 0, -1. For the alpha particle, there was decrease in mass number by 4 and atomic number by 2. Alpha particle. In the case of beta particle, what will happen? There is no change in the mass number, 0. While the atomic number changes by
-1. This decreases. Here decrease in 4 and 2, and here decrease in -1. So what will happen? You will say if the new substance is Z, so its mass number will remain unaffected. While what will happen? Z -2 minus -1, that is Z -1. So this will be Z -1. It means what's going on? Atomic number increases by 1. इसमें क्या हो रहा था? In the case of alpha particle emission, atomic number decreases by 2, while in the emission of beta particle, atomic number increases by 1. अच्छा, जब ये एटॉमिक नंबर 2 अल्फा पार्टिकल के एमिशन से 2 कम हो रहा था, तो पीरियोडिक टेबल में 2 प्लेस पहले आ जा रहा है आपका वो सब्सटेंस X जहां था उससे 2 प्लेस जो पहले हमारा सब्सटेंस था, हम वहां पहुंच जाते हैं। और वहीं जब हमारा बीटा पार्टिकल निकलता है तो हम जहां थे Y पे उससे एक पोजीशन आगे पहुंच जाते हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है? नाउ देयर इज एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल, अल्फा बीटा गामा। If the new substance is say X, say W, if it is W, then there is no change in the mass number and atomic number. Students, this is all about the Soddy-Fajan'S displacement law. The main is this one. हमने आपको सब कुछ बता दिया। अब जितने भी अल्फा पार्टिकल एमिट होते जाएंगे अकॉर्डिंगली ही चेंज होता जाएगा। अब इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो यू कैन सॉल्व। एक कोई एटॉमिक नंबर दिया, कुछ भी दे दिया, 200 सम, 235 मास नंबर, 7 कुछ भी दे दिया, तो जब अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो वहां 2 कम और यहां पे 4 कम हो जाएंगे। यहां पे कोई चेंज नहीं होगा बीटा पार्टिकल निकलने से, और यहां एक इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और एक गामा पार्टिकल के निकलने से कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब इसी को जो स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया, दैट इज Soddy-Fajan's रूल, राइट? दैट इज रदरफोर्ड्स Soddy-Fajan डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टेटमेंट लिख देंगे और उसको कॉपी कर लीजिएगा, राइट? वीडियो पॉज करिए। स्टूडेंट्स, I have written these all 3 rules. Just sound ready. On emission of alpha particle, atomic number decreases by 2, mass number decreases by 4. Number 2, on emission of beta particle, atomic number increases by 1 and no change in the mass number. And third, on emission of the gamma particle, no change in atomic number and mass number. And this compilation of the rule is Soddy-Fajan's displacement law. Note down it. Okay, students, now the second topic, that is radioactive decay law. That was the Soddy-Fajan's rule, and this is radioactive decay law. What it says, actually students, we can't confirm that how many alpha, beta and gamma particles are emitted from radioactive substance and in how much time they will come out. But in general, on the basis of probability, after looking the samples, that was decided that the number of disintegrated nuclei from a radioactive substance per second, nuclei disintegration per second, was directly proportional to the number of nuclei undecayed present in that. मतलब रेट ऑफ डिके कह सकते हैं आप इसको। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो एमिट हो रहे हैं उनका रेट जो है उस समय उसमें प्रेजेंट न्यूक्लियाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। स्टेटमेंट देखिएगा, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकेंड
of a radioactive sample at any instant is directly proportional to the number of undecayed nuclei present in the sample at that instant. Right? ठीक है. इसका मतलब हम अगर इस तरीके से कहें कि that is rate of decay is directly proportional to number of nuclei present at that instant. Rate of decay मतलब dn upon dt और decay हो रहा है तो माइनस that will be proportional to the number of nuclei present at that instant. मतलब किसी भी टाइम पर t इंस्टेंट पर अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n प्रेजेंट है तो रेट ऑफ डीके एट दैट इंस्टेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस. इसको हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट इट हियर एज dn by n proportional to dt या dn by n is equal to माइनस लैम्डा dt. और लैम्डा एक हमारा कांस्टेंट है, लैम्डा इज कांस्टेंट एंड दिस इज योर decay कांस्टेंट where lambda is decay constant. Lambda is your decay constant, right? तो अब क्या कहते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐसे हो जाएगा ना, dn by n is equal to integration minus lambda into dt. yes, मैं अगले से क्या लिख रहा हूं इसको फिर से, dn by n is equal to माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, दिस विल बी dt क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, और dn by n हो जाएगा log n base e is equal to minus lambda t and plus c. c is the constant. ठीक है, माइनस लैम्डा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं. अब कहते हैं इफ at t is equal to 0, t is equal to 0, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे n क्या हो जाएगा, n will be n naught. n naught क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट t is equal to 0. तो अब इस इक्वेशन को हम देखें क्या हो जाएगा, therefore इसमें क्या हो जाएगा बेटा, दिस विल बी log n naught base e t0 plus c, that is c. c की वैल्यू आपको मिल गई ना, you got the value of c. t is equal to 0 पुट करने के बाद you got the value of c. अब इस c को इसमें पुट करते हैं, therefore putting c in equation 1 क्या होता है, देखिए log n base e is equal to minus lambda t plus log n naught base e. ठीक है, c की जगह मैंने रख दिया. अब इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, देखिएगा बेटा, log n बेस e ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, log n नॉट बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, और इसको लिख सकते हैं
व्हाट वी कैन राइट दिस, इसको लिखते हैं log m माइनस log n क्या हो जाता है, log m बाई n, तो ये हो जाएगा log बेस e n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। ये चीज समझ में, log n बाई n नॉट बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। मैथमेटिक्स है यहां पर, आप जरा इसको देखो 2 मिनट, जहां पे कोई दिक्कत हो समझिए, अदरवाइज इसको देखिए 2 मिनट। देखिए ना, हो गया। अब क्या करें, ये अगला स्टेप यहां लेके आ रहे हैं, तो n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e पावर माइनस लैम्डा टी, यानी n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी। अब मैं इसको एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जैसे आपने एक बार इसको फिर से देखो क्विक, फिर मैं बताता हूं, एक बार फिर से कंप्लीट चेक कर लीजिए। देखिए ये स्टेटमेंट लिखा हुआ, रेट ऑफ डिके यानी न्यूक्लियाई जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं पर सेकेंड, दैट इज द रेट ऑफ डिके, is directly proportional to the number of nuclei present at that instant, that is minus dn by dt proportional to n। कब, at any instant t। ये कहानी जो लिखी गई है at any instant t, मैंने इसको मैथमेटिकल क्वेश्चन किया, dn by n is equal to dt माइनस साइन के साथ, dn by n is equal to माइनस dt इंटू लैम्डा, लैम्डा डिके कांस्टेंट है। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा, व्हाट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, दैट देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। डिक्रीज हो रहा ना, डिके हो रहा। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट c आता है, t इज इक्वल टू 0 पे n नॉट हो जाएगा, n नॉट क्या है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट t इज इक्वल टू 0, और n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट इंस्टेंट t। c की वैल्यू मिल गई, मैंने इसको उठा करके 1 में रख दिया, और जो हमारे पास आ रहा है दिस इज योर रेडियोएक्टिव डिके रूल। इसका इक्वेशन है, स्टेटमेंट वो है और इक्वेशन इसकी ये है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, पूरा कॉपी कर लीजिए। ओके क्लास, यू गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द रेडियोएक्टिव डिके लॉ, और वो n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी रिलेशन हमारा स्टेब्लिश हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, मैं एक टर्म आपको बताऊं, फिर उसके बाद बात करता हूं। जैसे हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, द टाइम पीरियड इन विच हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दैट एटम डिकेड। जितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, मान लीजिए 100 हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 1 आवर में अगर 50 बच रहे हैं, तो दिस टाइम पीरियड विल बी हाफ लाइफ। मतलब हाफ लाइफ का मतलब द लाइफ पीरियड ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इन विच इट्स हाफ अमाउंट इज अनडिकेड, राइट। मतलब न्यूक्लियाई जितने डिके हो रहे हैं वो केवल आधे हो रहे हैं, दैट इज द हाफ लाइफ। तो मैंने क्या किया कि अब जो एक ग्राफ प्लॉट किया डिसइंटीग्रेशन वाला रेडियोएक्टिव डिके लॉ के बेसिस पे, यह नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई एट टाइम टी, और यहां पे क्या है, टाइम लिया, टाइम को हमने हाफ लाइफ के साथ ले लिया है। तो दिस इज हाफ लाइफ, ये उसकी सेकेंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ, और ये नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई। तो मान लीजिए शुरुआत t इज इक्वल टू 0 पे, इसमें n नॉट आपके सब्सटेंसेस अवेलेबल थे, तो हाफ लाइफ में कितने हो जाएंगे, n नॉट बाई 2। हाफ लाइफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 4, ये यानी ये डिके होते होते यहां पहुंच जाएगा। नंबर ऑफ कितने हो गए, n नॉट बाई 2 यहां पे। अब सेकेंड हाफ लाइफ, तो अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसका हाफ हो जाएगा,
यानी ये यहां पहुंच जाएगा। हाफ का मतलब 4 से आधा हो गया 2, एन नॉट बाई 2, एन नॉट बाई 4। और इसके बाद अगले हाफ लाइफ में 2 का हाफ 1, यानी यहां हम पहुंच जाएंगे यहां। उसके बाद अगले हाफ में इसका हाफ हो जाएगा, यानी यहां, यहां, और मतलब ये इस तरीके से यूं चलता चला जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? देयर इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन इट। क्लियर? और हर हाफ लाइफ के बाद आधा होता चला जा रहा है। इसका आधा हो गया, ये पॉइंट आधा का मतलब अगर 8 डिवीजन है तो 4 डिवीजन, इसके बाद अगले नंबर पे 2 डिवीजन, अगले नंबर पे 1 डिवीजन, अगले नंबर पे उसका हाफ डिवीजन, अगले नंबर पे उसका हाफ, और डिक्रीज। और ये देखो दिखाई दे रहा कि लास्ट इसका इनफाइनाइट टाइम पे खत्म होने का कोई टाइम था नहीं, इनफाइनाइट टाइम लगेगा, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम, राइट? तो स्टूडेंट्स, यू गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वन। दिस इज योर रेडियोएक्टिव डीके लॉ। अच्छा, एक और चीज आपने शुरुआत में देखा था, माइनस डी एन बाई एन वॉज प्रोपोर्शनल, डी एन बाई डी टी वॉज प्रोपोर्शनल टू एन, और जो निकला था डी एन बाय एन इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, इससे निकला था। अभी पिछले टॉपिक में हमने किया था। तो अगर कोई लैम्डा यानी डीके कांस्टेंट के बारे में पूछे तो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस डी एन सॉरी, इट इज डी टी। तो डी एन बाई एन अपॉन डी टी। और अगर आपको डी को कांस्टेंट डिफाइन करना हो तो दिस बाय दिस, इस तरीके से आप डी के कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ग्राफ भी बना लीजिएगा डिसइंटीग्रेशन का, इसको करिए। इसके बाद में हाफ लाइफ और डी के कांस्टेंट में रिलेशन बता रहा हूं। ओके क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द हाफ लाइफ एंड रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। हाफ लाइफ तो बता चुका हूं, मैंने यहां लिख दिया है पहले, जल्दी से, टाइम कम लगेगा। द टाइम इंटरवल इन विच 1/2 ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई ओरिजिनली प्रेजेंट इन द सैंपल डिसइंटीग्रेट, मतलब जितना ओरिजिनली प्रेजेंट था उसका हाफ डीके हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ। अब रिलेशन देखिए, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट। तो मान लीजिए कि जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 पे, वो एन नॉट होते हैं, और एट इंस्टेंट टी पे क्या होते हैं? टी। तो लिखा है एन नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट टी इज इक्वल टू 0 एंड एन इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट इंस्टेंट टी। तो अब आफ्टर टी इज इक्वल टू टी हाफ, एन क्या हो जाएगा? एन विल बिकम एन बाय 2। ठीक है, देखिए वी नो दैट क्या एन इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं, एन इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। अब ये हम यहां पर पुट कर रहे हैं, तो एन की जगह एन नॉट बाई 2, कब? आफ्टर टी इज इक्वल टू हाफ टाइम। तो ये हो जाएगा एन नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ। एन नॉट कैंसिल हो गया, तो 1/2 इज इक्वल टू ई पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, यानी 2 इज इक्वल टू ई पावर लैम्डा टी हाफ। राइट, यहां तक समझ में आया? एक देख लीजिए 2 मिनट। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको हम कह सकते हैं, ये अगले स्टेप में मैं इसको यहां लिख रहा हूं, ये हो जाएगा लैम्डा टी हाफ इज इक्वल टू log 2 बेस ई। ठीक है, और इसका मतलब टी हाफ इज इक्वल टू log 2 बेस ई डिवाइडेड बाय लैम्डा, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डीके कांस्टेंट। किसी को इसमें प्रॉब्लम है? इसको आप कर सकते हैं ऐसे, टी हाफ इज इक्वल टू
2.303 log 2 बाय लैम्डा। ये ऐसा क्यों किया? बेस ई है ना, 2 बेस ई के साथ है तो इसको बेस 10 के साथ कर दिया, बेस 10। अंडरस्टूड? और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं log 2 का वैल्यू क्या है, 0.30, दैट इज यहां लिख रहा हूं t हाफ इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 बाय लैम्डा, एंड व्हाट द फाइनली वैल्यू ऑफ t half will come 0.693 अपॉन लैम्डा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डिके कांस्टेंट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर से n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, और t हाफ के बाद हमने ये वैल्यू इसमें पुट करके केवल मैथमेटिक्स है जो आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, रिमेनिंग इन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।